What an amazing model, whispered Huey as he shook hands with his friend. An amazing model, shouted Trevor at the top of his voice. I should think such beggars as he are not to be met with every day. A discovery, my friend, a living Velasquez. My stars, what an itching Rembrandt would have made of him. Now, when Huey saw the model, he said, an amazing model. Wow, what an amazing model you have found, my friend. और ट्रेवर ने इस बात को पे सहमति दी. हाँ, ये जो मॉडल है बेगर का ये बहुत अमेजिंग है. और उन्होंने कहा कि इस तरह के मॉडल्स रोज़ नहीं देखने को मिलते, इसीलिए मैं इनकी पेंटिंग बना रहा हूँ. ट्रेवर ने एक और बात ऐड करी. वो कहते हैं इट्स मेरी किस्मत है, मेरे स्टार्स हैं जो मैंने इस बेगर को डिस्कवर किया. एंड देन ही सेज कि अगर जो महान आर्टिस्ट रहे हैं, महान पेंटर्स रहे हैं, वेलेस्क्वेज एंड रेम्बार्ड, अगर उनको ये मॉडल मिलता तो सोचो मेरे दोस्त वो कितनी अच्छी, इनकी मेरे से भी कितनी अच्छी इसकी पेंटिंग बनाते. नाउ Huey says, Poor old chap, said Huey. How miserable he looks, but I suppose to you painters his face is fortune. Certainly, replied Trevor. You don't want a beggar to look happy, do you? How much does a model get for sitting? Asked Huey as he found himself comfortable seat on a divan. Now Trevor says, a shilling an hour. And how much do you get for your picture, Ellen? For this, I get 2,000. 2,000 what? Pounds? Guineas. Painters and poets, physicians always get guineas. Well, I think the model should have a percentage, cried Huey, laughing. They work quite a hours as you do. Nonsense, nonsense. Why, look at this trouble of laying on the paint alone and standing all day long at one's easel. It's all very well, Huey, for you to talk, but I assure you that there are moments when art almost attains the dignity of manual labor, but mustn't chatter. I'm very busy. Keep quiet. Now, अब जब ह्यूई ने अपने फ्रेंड को कहा कि ये जो मॉडल आपका बेगर है, आप इसको कितना पे करते हैं मॉडल बनने के लिए. देन हिज फ्रेंड एलन ट्रेवर पेंटर ने उसको बोला कि मैं इसको 1 शिलिंग देता हूँ 1 घंटे के लिए, विच इज़ वेरी लेस, ह्यूई थॉट. एंड देन उसने पूछा कि आप कितना कमाते हो इसकी पिक्चर, इसकी पेंटिंग बना के. तो ट्रेवर ने, एलन ने जवाब दिया कि I get 2,000. Then Huey says, what, 2,000 pounds? Ellen says, no, 2,000 guineas. Guineas क्या होते हैं? Guineas होते हैं gold coins. Then he says, he adds that जो painters होते हैं या doctors होते हैं या poets and artists होते हैं, उनको लोग guineas में, gold coins में पे करते हैं, pounds में नहीं. ये सुन के ह्यूई को लगा कि जो मॉडल है उसको तो आप बहुत कम पे करते हो, तो यू शुड, जो आप जितनी आपकी पेंटिंग बिकती हैं उसमें से यू शुड शेयर अ परसेंटेज विद द मॉडल्स ऑल्सो. बट देन हिज फ्रेंड एलन ट्रेवर सेज कि आपको क्या लगता है पेंटिंग करना बहुत आसान काम है? सारा दिन पेंट ब्रश पकड़ के पेंट के साथ खड़े रहना पड़ता है और सारा दिन रात लग जाता है कोई पेंटिंग बनाने में. तो ये भी बहुत मेहनत का काम है पेंटिंग बनाना, ये भी कोई इजी काम नहीं है. देन उसका फ्रेंड कहता है, नाउ आई एम वेरी बिजी, लेट मी वर्क. और आप आराम से चुपचाप बैठो. आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन एंड टोल्ड ट्रेवर that the frame maker wanted to speak to him. Don't run away, Huey, he said as he went out. I will be back in a moment.
The old beggar man took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him. He looked so forlorn and wrecked that Hughie could not help pitying him and felt in his pockets to see what money he had. All he could find was a sovereign and some coppers. Poor old fellow, he thought to himself, he wants it more than I do, but it means no hansom for a fortnight. And he walked across the studio and slipped the sovereign into the beggar's hand. The old man startled and a faint smile flitted across his wrinkled lips. "Thank you, sir," he said. "Thank you." Now, जैसे ही ट्रेवर का सर्वेंट स्टूडियो में आया, उसने कहा कि एक फ्रेम मेकर एलन ट्रेवर को मिलने आया है, और एलन ट्रेवर थोड़ी देर के लिए स्टूडियो से फ्रेम मेकर को मिलने बाहर चले गए. नाउ ह्यूई को इस बेगर मॉडल को देख के बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तरस आया. बहुत ज़्यादा वो उसको देख के उसको लगा कि ये इतना ओल्ड है, इतना गरीब है, सो आई शुड डू समथिंग टू हेल्प हिम. उसने अपनी पॉकेट सर्च करी और उसमें एक सोवरेन और कुछ कॉइन्स थे. तो जितने भी उसकी पॉकेट में पैसे थे उसने निकाल के धीरे से चुपके से उस बेगर के हाथ में दे दिए, जिसको देख के वो बेगर बहुत एकदम से उसको भी उसने लिए वो कॉइन्स और उसको थैंक यू कहा. Then Trevor arrived and Hughie took his leave, blushing a little at what he had done. He spent the day with Laura, got a charming scolding for his extravagance and had to walk home. अब जितने पैसे उसके पास थे ह्यूई ने बेगर को दिए, और जैसे ही ट्रेवर स्टूडियो में आया तो उसको गुड बाय करके ह्यूई लॉरा को मिलने चला गया. जब उसने लॉरा को ये सारी बात बताई और उसने बताया कि उसके पास जितने फोर्टनाइट के लिए पैसे थे उसके पास वो उसने बेगर को दे दिए, तो लॉरा भी उसको डांटने लगी कि ये तुमने क्या किया, सारे पैसे तो तुमने बेगर को दे दिए, अब तुम अपने फोर्टनाइट का खर्चा कैसे चलाओगे. बट Hughie was happy that he helped the old beggar.